electromotive force at non-standard conditions can be calculated by using Nernst equation. जो standard electrode potential है, it is provided for the cell. But when the non-standard conditions are there, then we can use the Nernst equation and we can find out the electromotive force, that how the flow of electrons and a current can be started or how it is flowing. So here a question is for your competitive exam. The cell reaction is given here, the zinc and silver, दो उनकी मोलार कंसंट्रेशन हमें मिली है साथ में. E cell standard electrode potential is 2.57 volt and then EMF of cell at 298 means हमें 298 स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है. देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? What we can do here? We can use the Nernst equation for that. So let write the Nernst equation. Nernst equation is to find out the electrode potential or electromotive force of a cell at non-standard conditions. So that is the E cell equal to E standard of the cell minus 0.0591 by N, that is log of the molar concentration of the product, that is the Zn2 plus, divided by the molar concentration of the reactant, that is silver plus, and having a power of 2. अगर जो हमारा आप यहाँ पे 2.303 RTNF भी लिख लेते तो उन सभी की जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू, तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख देंगे. एज ए सेड की जो हमें वैल्यूज आप डायरेक्ट लिखो चाहे इसको लिख लो, द आंसर विल बी द सेम. सो हमें यहाँ पे ई सेल ई स्टैंडर्ड दिया हुआ है, that is equal to 2.57 volt, and the concentration of zinc ion is given, that is the 0.28 m, and the concentration of silver ion is given, that is 0.2 m. Now we can substitute this value. और जो सेल रिएक्शन है, अगर मैं सेल रिएक्शन को देखूं, सेल तो मैं हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगी? हाफ सेल रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन और एट एनोड, then what is the reaction here? That is Zn, and from solid it is shifting to Zn2 plus and releasing the 2 electrons. And the half cell reaction, why I am writing this? To find out the value of N. For reduction, that is equal to Ag plus and plus, अगर यहाँ पे 2 है, or we can use 2 mole of electron, and we will get the silver, okay, in solid, so 2 silver will be there. तो जो N है, for by writing this we will know that N is 2 here, N को 2 हम यहाँ लिख देंगे. This is just to find out how we can substitute the value of N. तो N यहाँ पे 2 आ गया. Now we can write that N here equal to 2. Now place all the values in Nernst equation and we will get that E cell equal to 2.57 minus 0.0591 by 2 log, and substitute the value of concentration, that is a 0.28 by 0.2 and 2 times, this is square लिखा हुआ है, which will give us 2.57 minus 0.0591 by 2, and what we will do here, 0.28 by 0.2 multiply with the 0.2, square है 2 बार लिख दिया,
देन जो इनके ये डेसिमल्स है ये रिमूव हो जाएंगे and it will be 1/4 and it will be 7. So what we are having here, that is a 2.57 minus 0.0591 by 2 log 7. In case you will provided with the log book, fine. In this question we are provided with the some log value, log 2 3010, log 5 6990 and log 7 8451. Here we are in the need of log 7. मुझे तो log 7 क्योंकि उन्होंने कुछ वैल्यूज दी थी, अब मुझे यहाँ पे log 7 की वैल्यू चाहिए। तो क्योंकि एक ही नंबर है तो कोई पॉइंट से पहले कुछ आएगा ही नहीं, तो हम क्या कुछ भी नंबर नहीं आएगा पहले, तो क्या आ जाएगा, दैट इज अ 2.57 माइनस 0.0591 बाय 2 log 7। हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे क्योंकि इसके बाद ही डेसिमल है तो 0 है, कोई भी नंबर नहीं, हमें शिफ्ट नहीं करके लेके आना नंबर। जब भी हम लॉग निकालते हैं, लॉग निकालने के लिए जो डेसिमल से पहले 1 to 9 कोई नंबर होना चाहिए, तो वो है, तो मुझे जो डेसिमल है वो शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी उसके पॉइंट से पहले कुछ नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पॉइंट डाल के लिख देंगे, दैट इज मल्टीप्लाई विद द पॉइंट 8451। नाउ व्हाई आई पुट अ पॉइंट हियर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नंबर इसके बाद नहीं था, यहाँ पे डेसिमल है और डेसिमल से पहले ऑलरेडी एक नंबर है, मींस आई एम नॉट शिफ्टिंग डेसिमल टू आइदर, मैं नाउ से लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं लेके जा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल ऐसे पॉइंट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से कट कर देते हैं, दैट इज अ 4225.5। तो यहाँ ऑलरेडी पॉइंट था तो हम यहाँ पे दैट इज यहाँ से हटा लेते हैं, और नाउ वी कैन चेक कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2.57 माइनस 0.0591 एंड मल्टीप्लाई विद 0.4225। इतनी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो हमने डेसिमल अगर रिमूव करने हैं तो दैट इज 10 to the power 8 हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 591 को मल्टीप्लाई करेंगे 4225 के साथ, दैट इज 5224 प्लस 45 4 carry and that is 22 and 2 carry 20 and 2 carry 38, then 25 2 carry and that will be 12 1 carry 11 1 carry and that is the 21. So what we are having, 5 7 and 9 6 9 4 2 और 8 हमारे नीचे जो जीरोस थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, 2.57 माइनस 0.5796942 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 9 एंड 6 9 7 5, तो बहुत जो वैल्यू काफ़ी बड़ी है। हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि व्हाट वी विल डू, हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2.57 को हम सिंपल सी 0.02 के साथ, आगे 4 है या 5 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो 7 से आप 2 माइनस करते हैं, दैट विल बी 5 और यहाँ पे 4 एंड दैट इज 2, तो लेट मी चेक दैट 2.5 मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो हमारा ऑप्शन ए है, क्योंकि बाकी की कोई भी वैल्यू उसके नियर अबाउट भी नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे 2.45 है, हम इसको 2.5 जो वोल्ट हमारा जो सेल का ईएमएफ है वो इतना आ गया है, एंड दैट इज द ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है।
Still, if you have a doubt, just give me a comment in my comment box and see you soon in next video.